Hello students, how are you? I hope you all are fine. My dear students, today we will discuss first chapter of 9th class, that is number system. This is the basic chapter of 9th class, and if you understand all this definition with conceptual, then surely there will be not any type of problem in further chapters, because this is a basic chapter and these definition you will use in every chapter. Okay, so firstly we will discuss number system. What are number system? The system in which we deal with the different types of numbers is called number system. एक system होता है जिसके अंदर हम अलग अलग types के number से deal करते हैं, अलग अलग type के numbers के साथ काम करते हैं, that is number system. Now my dear students, today next we discuss numbers. The numbers क्या होते हैं? The number is a mathematical tools or mathematical objects used to count, label and measure. For an example, if you have to count the how many students in your classroom, then you start 1, 2, 3, 4, that are numbers. If we have to measure the length of any table, 6 centimeter or 10 centimeter, or the length of the room, then we use numbers. So that are numbers. That numbers are used to count, label or measure. Okay, now how many type of numbers we will discuss. Numbers कितने types के होते हैं? Natural number, then whole number, integers, then rational and irrational. Now my dear students, we will discuss these different types of numbers one by one. Now these are natural numbers. All counting numbers are called natural numbers. For an example, 1, 2, 3, 4 and so on. So on means there is no end point. That numbers goes on up to infinity. So we write here up to dash dash dash, it means so on. Okay. So natural number, we denote the natural number by capital N. N means natural number, 1, 2, 3 and so on. Now next, whole numbers. The natural numbers along with zero is called whole numbers. सभी natural numbers के साथ एक number extra add कर दिया zero. That are whole numbers. 0, 1, 2, 3 up to 4 and so on. So on means there is no end point. So it comes on infinity. ठीक है? Whole numbers. Now integers. Integers क्या होते हैं? Negative natural numbers, positive natural numbers and zero. That are integers. Or other definition we can write the whole numbers along with negative natural numbers is called integers. The whole number means that are whole numbers. The whole numbers along with negative natural numbers, minus 1, minus 2, minus 3 up to infinity, that are integers. Now we will discuss the types of integers. Look here dear students. इस इंटीजर्स की क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. ठीक है? The whole numbers along with negative natural numbers, minus 1, minus 2, minus 3 and so on. ठीक है? Now देखते हैं इसकी टाइप्स क्या है इंटीजर्स की. अब देखो ये क्या है? 0, 1, 2, 3 ये सभी होल नंबर्स हैं, बट जीरो काउंट नहीं करने. 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है? एंड minus 1, minus 2, minus 3 एंड अप टू सो ऑन इंफिनिटी ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है? एंड द जीरो इज, जीरो को क्या कहोगे? ये ना पॉजिटिव में जाएगा ना नेगेटिव में, ये जीरो इंटीजर ही रहेगा. ठीक है? जीरो इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो. जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. सो जीरो क्या है? आप कहोगे मैडम ना तो जीरो पॉजिटिव में जा रहा ना नेगेटिव में, तो जीरो जाएगा नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव. अगर जो नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स नॉन नेगेटिव. इफ इट इज नॉट पॉजिटिव दैट मीन्स इट इज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव. ठीक है? तो जीरो क्या है? नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव. ठीक है? तो दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स. So my dear students,
If 0 is neither negative nor positive, then it comes in non-negative integer and non-positive integers. Non-negative मतलब जो नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स जो पॉजिटिव है, बट 0 ऐड कर देना, 0, 1, 2, 3 एंड so on, दैट आर कॉल्ड non-negative integers. जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नो 0, 1, 2, 3 एंड so on. सो ये क्या है, non-negative integers. एंड नॉन पॉजिटिव मीन्स जो पॉजिटिव नहीं है, जो नेगेटिव की कैटेगरी में जाते हैं, बट नॉन आते ही उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 0. तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 0, -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ठीक है. सो and my dear students, please remember it very clearly that 0 is neither negative nor positive. तो अगर नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाए तो -1, -2, -3 एंड so on, और अगर पॉजिटिव कहा जाए तो 1, 2, 3 एंड so on. बट 0 ऐड करते ही वो इंटीजर्स हो जाएगा नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव. ठीक है ना. इनमें 0 ऐड होता है, सिंपल में 0 ऐड नहीं होता, 0 काउंट नहीं होता इंटीजर्स. ठीक है. देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 up to so on, and here in this side -1, -2 and up to so on infinity. तो इसमें 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0 इंटीजर. 0 को अलग काउंट किया है, 0 को मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ काउंट नहीं किया. ओके, दैट्स ऑल इट अबाउट द इंटीजर्स. Now my dear students, we will discuss rational numbers. I think you all discussed all this in last classes also. Now we will discuss all this in details. Okay, in detail study we will study these rational numbers. The numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, is called rational numbers. Okay. Now look an example. We will denote the rational numbers by capital Q. Okay, and p by q, where p and q belongs to z. Z means integers and q not equal to 0, and denominator is not equal to 0. That is called rational numbers. For an example, 1 by 2 क्या है, rational numbers है. 5 by 1 क्या है, rational number है. -4 by 3 क्या है, rational numbers है. But -4 by 0 is not rational numbers because in this denominator is 0. If denominator is 0, then answer of this is not defined form. Okay, if it is not defined, then how can it comes in the rational or any other categories? So this is not defined form, so we can't call it a rational numbers. This is the condition in the definition also, that q not equal to 0. क्यू 0 नहीं है तभी ये रेशनल नंबर है. अगर क्यू 0 आता है दैट मीन्स उसका आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड फॉर्म. उसकी डेफिनेशन नहीं है, उसका आंसर नहीं है, हम डिफाइन नहीं कर सकते, वी कांट. ओके, सो क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड p by q, और p और q किसमें है, p और q belongs to integers, that is rational numbers. Now we will discuss from the starting to last. हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर. फिर हमने पढ़ा नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इंटीजर्स की अलग अलग टाइप की. फिर हम रेशनल पढ़ाए. ठीक है. अब हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि रेशनल में क्या क्या आते हैं. रेशनल मीन्स p by q फॉर्म, और नेचुरल क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. अब 1 को मैं 1 by 1 लिख सकती हूँ ना. मैंने 1 को क्या लिखा, लुक हियर डियर स्टूडेंट्स, मैं 1 को 1 by 1 लिख सकती हूँ, 2 को 2 by 1, 3 को 3 by 1, 4 को 4 by 1. अब देखो ये p by q, p by q, p by q, p by q फॉर्म है. आज दोनों क्या है, p और q इंटीजर से आया है, एंड q नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज q तो हर केस में 1 है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर. हम नेचुरल नंबर को रेशनल की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि सभी कुछ रेशनल की फॉर्म में आ गया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, होल नंबर्स. अब होल नंबर में क्या है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर है 0, बाकी सभी तो 1, 2, 3 नेचुरल से ही आए हैं. तो सभी नेचुरल अगर रेशनल है, होल में 0 को लीव करो, बाकी सभी रेशनल है. अब माय डियर स्टूडेंट्स, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. क्यों, कैसे, देखो यहाँ 0 को आप 0 by 1,
0/2, 0/3, 0/4 हम लिख सकते हैं। अब देखो ये 0/1 का मतलब ये p/q फॉर्म में बन गया, एंड p और q 0 और 1 दोनों कहाँ से आए हैं, इंटीजर से ही तो आए हैं। ये सभी 0/1, 0/2, 0/3 ये सभी इंटीजर से आए, एंड q नॉट इक्वल टू 0। q मीन्स अब नीचे का डिनोमिनेटर तो 0 है ही नहीं है ना, सो 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अगर 0 रेशनल है तो होल नंबर्स में सभी नंबर्स कहाँ चले गए, रेशनल नंबर में चले गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। सारे होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स में होल नंबर्स तो सारे आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। अब पॉजिटिव क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, वो तो रेशनल हो गए। ठीक है ना, जीरो भी क्या है, रेशनल है। अब आ जाओ नेगेटिव इंटीजर्स पर। नेगेटिव इंटीजर्स देखो यहाँ, -1, -2, -3 ये नेगेटिव है। अब -1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये p/q फॉर्म बन गई ना। अगर p/q है और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। आ गए ना सभी रेशनल में, सारे इंटीजर्स किस में चले गए, रेशनल में। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो इंटीजर्स भी क्या चले गए, रेशनल नंबर्स में चले गए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी रेशनल है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहाँ चले गए, रेशनल में चले गए। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, all natural numbers are rational, all whole numbers are rational, and all integers are also rational numbers. Clear? This is all about the rational numbers. Now next we will discuss irrational numbers. Now dear students, irrational numbers. After rational numbers we will discuss irrational numbers. What are the irrational numbers? The numbers which are not in the form of p/q. अब रेशनल p/q में है, इर का मतलब जो रेशनल नहीं है, तो जो p/q में नहीं होंगे दैट ऑल आर in the category of irrational numbers. The numbers which are not in the form of p/q. और second definition, अब p/q में नहीं है तो क्या होंगे, वो डेसिमल एक्सपेंशंस के नंबर होंगे, इरेशनल। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट और नॉन रिक्यूर है उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। फॉर एन एग्जांपल 1.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अब देखो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिक्यूर पता होगा तभी आपको पता चलेगा कि ये नंबर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको डिफाइन करूंगी इन टर्म्स के बारे में। टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट क्या होता है, रिक्यूर क्या होता है, नॉन रिक्यूर क्या होता है, पहले वो मैं आपको बताऊंगी, देन वी विल डिस्कस दीज टू एग्जांपल्स। क्लियर? Now my dear students, I will define the term terminating, non-terminating, recurring and non-recurring. ये क्या होते हैं? सबसे पहले देखो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रियल नंबर्स में होते हैं डेसिमल वाले नंबर और विदाउट डेसिमल वाला नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर किस किस से बना है, रियल नंबर दो टाइप के नंबर से बना है, एक तो डेसिमल वाले नंबर से बना है, एक विदाउट डेसिमल वाले नंबर से बना है। ठीक है ना, जब विदाउट डेसिमल आते हैं, जिसका मतलब, डेसिमल का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को p/q को अगर हम कन्वर्ट करें डिवीजन करके, डेसिमल मतलब डॉट लगा के जो आंसर आता है, दैट आर डेसिमल नंबर्स। विदाउट मीन्स सिंपल नंबर्स 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड 0। तो विदाउट डेसिमल में सारे इंटीजर्स आ गए। ठीक है ना, ये सभी क्या है, इंटीजर्स आ गए विदाउट डेसिमल में। अब इंटीजर्स में क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर भी आ गए, नेगेटिव नेचुरल भी हो गए, इंटीजर्स। ये सारे जो हमने स्टार्टिंग से लेकर पढ़े हैं इंटीजर्स तक, ये तो हो गए विदाउट डेसिमल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन जीरो को ऐड करते ही ये क्या बन गया, होल नंबर्स, और फिर नेगेटिव को ऐड करते ही ये क्या बन गया, इंटीजर्स। ये सभी क्या है, विदाउट डेसिमल नंबर्स। अब इंटीजर्स के बाद हमने पढ़े थे रेशनल नंबर्स। रेशनल का मतलब p/q की फॉर्म में। अब p/q की फॉर्म में उसमें दो टाइप्स के नंबर थे, ये सभी भी p/q की फॉर्म में है। एक p/q का मतलब नीचे कुछ डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ और नंबर्स हो, और डिवाइड करने के बाद फिर वो डेसिमल वाले नंबर्स बनते हैं, वो आएंगे विद डेसिमल वाले नंबर्स में। ठीक है ना, अब विद डेसिमल वाले नंबर्स में देखो तीन टाइप्स के नंबर होते हैं। फर्स्ट नंबर,
आपने नंबर लिखा 2.125। अब 5 के बाद मैंने नंबर को खत्म कर दिया, टर्मिनेट मैंने स्टॉप कर दिया, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट का मतलब डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद नंबर 2 के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद या 10 प्लेसेस के बाद रुक जाते हैं, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है? टर्मिनेटिंग टाइप की है, ठीक है ना। टर्मिनेट मीन्स रुक गया है। अब अगले टाइप का नंबर है 2.12121212 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन रुकी नहीं है, चल रही है, और क्या है? रिपीट भी हो रही है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग की सेकंड सिनोनिम है, इसका सिनोनिम है रिक्यूरिंग, ठीक है ना। तो रिक्यूरिंग का मतलब रिपीट होना। अब डेसिमल एक्सपेंशंस के नंबर 1 2 नंबर ही देखो, 1 2 है, ये भी 1 2 1 2 1 2, ये वही 1 2 रिपीट हो रहे हैं और रुक भी नहीं कर रहे हैं, कहीं रुके नहीं है ना, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग रिपीटिंग की टर्म डिफाइन होगी। टर्मिनेटिंग मीन्स जो डेसिमल के बाद कहीं स्टॉप हो जाते हैं, उसे टर्मिनेट कहते हैं। अब तीसरी टाइप है 2.1234 एंड सो ऑन। ये चल रहे हैं बट ना तो ये रिपीट हो रहे हैं, ना ही कहीं स्टॉप हुए हैं, रिपीट भी नहीं हुए हैं, कहीं स्टॉप भी नहीं है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स, ठीक है ना। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं रुका नहीं है, देखो चल रहा है, एंड नॉन रिक्यूरिंग, कोई रिपीट ही नहीं है, सब कुछ अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग वाली टर्म। रिपीट, टर्मिनेट जो डेसिमल नंबर डेसिमल के बाद 2 प्लेस के बाद रुके, 3 प्लेस के बाद कहीं रोक स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। देखो जैसे ये है 1.1456789, मैंने यहाँ रोक दिया नंबर, यहाँ रुक गया, आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेट। अब मैं अगला नंबर लिखती हूँ, मैंने लिखा 2.15151515 एंड सो ऑन। अब रुका नहीं है बट ये चल रहा है, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म, रिक्यूरिंग फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट नंबर अगर मैं लिखती हूँ 7.1201001001001401 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखो पहले 1 0 था, फिर 2 आई, फिर 3, फिर 4, इस तरह से 5 6 7 8। अब हमें पता है इट इज श्योरली कि ये नंबर कहीं रिपीट नहीं होगा, हर बार 0 की एक नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग फॉर्म। तो इस टाइप के जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिक्यूरिंग होती है, हम इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं हम? रेशनल नंबर्स, ठीक है। देखो 2.125, अब यहां देखो 2.125 को मैं रेशनल में ला सकती हूँ 2125/1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेस है तो नीचे 1000 लगा दो, तो ये p/q की फॉर्म में आ गया ना। तो हर टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर्स है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स, ये हम एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन के नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को भी हम p/q में पुट कर सकते हैं। ये आगे मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज में बताऊंगी। तो ये भी क्या है? ये भी रेशनल नंबर्स ही हैं, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेटिंग भी रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल है, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वाले नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड ऑल रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स में विदाउट डेसिमल्स आ गए, डेसिमल्स आ गए, इनमें क्या है? ये सभी रेशनल्स हैं, विद डेसिमल्स में रेशनल है, इरेशनल है। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड
रियल नंबर्स, या रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers. ठीक है, so every rational number is a real number, every irrational number is a real number, but every real number is not a rational और नॉट ए इरेशनल. क्योंकि मैं सभी रियल को रेशनल ही कहूँ तो गलत होगा ना, क्योंकि उसमें इरेशनल भी तो है. और अगर मैं सारे रियल नंबर्स को इरेशनल कहूँ तो भी गलत है. क्यों? क्योंकि रियल नंबर रेशनल नंबर्स भी हैं उसमें. तो रियल नंबर्स दोनों की कलेक्शन से बना है और दोनों की सेपरेट कलेक्शन कहाँ जाएगी? रियल नंबर्स में जाएगी. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? And my dear students, I will tell you one diagram also. Okay, this will help you to remember all this concept. My dear students, सबसे पहले हमने किया रीड किया नेचुरल नंबर्स. ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर नेचुरल. अब नेचुरल में एक नंबर एक्स्ट्रा लिया, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स. ठीक है ना. देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने किया, हमने पढ़े नेचुरल नंबर एन. इसमें क्या किया? 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है. अब इसमें एक नंबर जीरो नंबर एक्स्ट्रा ले लिया तो मेरा बन गया होल नंबर्स. ठीक है, इसमें जीरो एक एक्स्ट्रा, बाकी सभी 1 2 3 एंड सो ऑन. अब इनमें नेगेटिव नेचुरल नंबर लिए तो बन गए इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या है? इनसे बड़ा हो गया. ठीक है ना. इसमें क्या आ गए? -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ये नंबर्स आ गए प्लस ये सारे नंबर्स, ये सभी क्या है? इंटीजर्स. तो ये बड़ा राउंड क्या है? इंटीजर्स का. ओके. अब क्या किया? इंटीजर इनमें मैंने कुछ और नंबर ले लिए 1/2 3/4 7/5 टाइप में. तो ये सभी क्या चले गए? रेशनल नंबर्स. अब मैंने ले लिए रेशनल नंबर्स को ऐड कर दिया. तो ये बड़े वाला सर्कल क्या है? रेशनल नंबर्स का. ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ एवरी नेचुरल, अब नेचुरल नंबर सबसे अंदर है, सबसे छोटा होल है, इसके ऊपर बड़ा है. तो ये नेचुरल नंबर होल में भी है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ठीक है ना. क्योंकि छोटे वाला तो बड़े के अंदर कंटेन हो गया, बट बड़े वाला छोटे में कंटेन नहीं होता ना. सो बड़े वाला होल इज नॉट द छोटा होल. कैसे? जस्ट दिस इज अ जोक फॉर एन एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, बट द रियलिटी इज every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. क्यों? होल में तो एक एक्स्ट्रा जीरो है, वो एन में नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा ना. तो जो स्मॉल सर्कल है वो बड़े में कंटेन है, बट बड़ा सर्कल स्मॉल में कंटेन नहीं है, इसीलिए बड़े वाला सर्कल स्मॉल सर्कल नहीं हो सकता. ठीक है. सो every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. Every whole number is integers, but every integer is not a whole number. क्यों? इंटीजर में तो बहुत ज़्यादा है, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आ गए हैं, तो ये होल नंबर नहीं हुए ना, बट होल नंबर तो इंटीजर के अंदर कंटेन हो गए, तो वो चला गया. और एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर. क्यों? 1/2 इरेशनल है, बट 1/2 इंटीजर में नहीं जाता ना. तो स्मॉल वाला सर्कल बड़ा सर्कल हो सकता है, बट बड़े वाला है ना, वो स्मॉल सर्कल नहीं हो सकता. तो ये जो डायग्राम है, ये आपके माइंड में कंसेप्ट लाएगा कि कैसे कौन सा नंबर किसके अंदर कंटेन होता है और कौन सा नहीं होता. ठीक है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस रेशनल नंबर्स के बाद कुछ नंबर्स होते हैं वो इरेशनल्स होते हैं. ठीक है. जो रेशनल की कैटेगरी में नहीं जाते तो वो इधर चले गए इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स. ठीक है. तो रेशनल और इरेशनल इन सब से क्या बन गया? रियल नंबर. ठीक है. रियल नंबर. ओके. तो ये डायग्राम, this will help you to understand all the numbers from number system to last irrational numbers. Clear my dear students? That's it for today.